رحیمیہ خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے۔ ایک جانب تو گرمی کا پارہ 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جبکہ دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر رکھا ہے۔ عامر بھٹی کی رپورٹ۔ رحیمیہ خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹوں تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتیں بجلی کئی گنا مہنگا کرتی ہیں، پھر بھی بجلی نایاب ہے۔ شدید گرمی میں اگر بجلی نہ ہو تو عوام کے لیے رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک بجلی مہنگی اور اوپر سے نہ ہو، ڈبل عذاب ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گرمی کا پارہ 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ایسے میں لوڈ شیڈنگ سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ عام شہریوں کا جینا بھی مشکل ہو گیا۔ بجلی تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے، خدا ہے آپ ایسے کریں کہ بجلی کم کر دیں۔ وہ تو بل اتنا آ رہا ہے، بہت مہنگا ہے، بہت غریب آدمی ہے، اتنا بندہ کر نہیں سکتا۔ کوئی مہربانی کریں، آپ بجلی سستی کریں۔ شہریوں نے میپ کو انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے جن کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیمیہ خان۔ ملتان صفائی کمپنی کی رہلی شریف پورہ کی شاہین آباد کالونی کا علاقہ فلتھ ڈیپو بن گیا۔ جا بجا کچرے کے انبار ہیں، تحفظ زدہ ماحول میں سانس لینا ہو گیا دشوار۔ وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیں۔ ملتان میں کلین اینڈ گرین پنجاب کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات۔ شریف پورہ کی شاہین آباد کالونی میں کچرے کے انبار لگ گئے۔ ویسٹ مینجمنٹ آپریشنل برانچ کی نااہلی کے باعث علاقہ فلتھ ڈپو میں تبدیل ہو گیا۔ علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ پانی والا سکول بیوا قانونی دا اتنے کوئی بھرن نہیں آتا، کوڑا چکن واسطے آئے کہ چکر لایا مڑ کے چھٹی۔ گڈراں دا نہ نالیاں دی کوئی صفائی، کوئی کسی چیز دی کوئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہج بیماری تو پھیلنی ہے، پھر جہاں کوئی کوڑا پیا اتنے بچیاں نے پھرنا ترنا لنگنا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی ہفتے کچرا یہیں پڑا رہتا ہے۔ عملہ صفائی کا جب دل کرتا ہے تب آتا ہے، جبکہ اسکول کے ساتھ ہی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سال لنگ جاندے ایک دو دنوں کی تو گل ہی نہیں۔ پانی والا سکول لگ گیا، بچے پڑھن آتے ہیں، اتنے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پریشان حال علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے صفائی کی ناقص صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ مظفر گڑھ انتظامیہ کی عدم توجہی انگریز دور کا یادگار وکٹوریہ کلب زبوں حالی کا شکار ہے۔ سابق ڈپٹی کمشنر کے دور میں شروع ہونے والا تزئین و آرائش کا کام تاحال نامکمل۔ اسکواش اور ٹینس کورٹ ویران ہیں۔ شہریوں کی ممبرشپ کا مرحلہ بھی شروع نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ تاریخی عمارات کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت قومی فریضہ ہے۔ مظفر گڑھ شہر کے وسط میں انگریز دور کا وکٹوریہ کلب المعروف یادگار کلب اپنی اصل حالت کھو بیٹھا۔ یادگار کلب ملکہ وکٹوریہ کے نام سے منسوب 1909 میں بنایا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سابق ڈپٹی کمشنر کے دور میں تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا، مگر اس کے بعد کسی نے توجہ نہیں دی۔ سابق ڈی سی مظفر گڑھ ڈاکٹر احتشام انور نے اس اثاثے کو محفوظ کرنے کی زبردست کوشش کی، جو کہ ان کے تبادلے کے ساتھ پھر رک گئی ہے۔ ہمارا مظفر گڑھ کے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک تو اس کو عام پبلک کے لیے کھولا جائے اور اس کو رینوویٹ کیا جائے۔ یادگار کلب میں ممبرشپ کا مرحلہ بھی شروع نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تاریخی عمارات ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کلب کو تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے تو شہر کا مثبت امیج اجاگر ہوگا۔ عام عوام کے لیے بھی اس کو کھولا جائے، یعنی اسپیشل لوگوں کے لیے تو یہ اوپن ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مظفر گڑھ کی جو عوام ہے ان کے لیے بھی یہ چیز مہیا کی جائے، اور یہاں پر فوٹوگرافی کی جائے، یہاں پر لائبریری اوپن کی جائے تاکہ لوگ یہاں پر کتابوں سے مستفید ہو سکیں، یہاں پر ٹینس بھی اوپن کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 114 سال پرانی عمارت قومی ورثہ ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس ورثے کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان انتظامیہ نے تجاوزات معافی کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ ڈبل پھاٹک چوک پر تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ بیچ سڑک پر ریڑیاں کھڑی ہونے سے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہری اور دکاندار دونوں پریشان دکھائی دیے۔ سہیب گرمانی کی رپورٹ۔ شہر اولیا میں تجاوزات مافیا آؤٹ آف کنٹرول۔ ریڑھی بانوں نے بیچ سڑک میں ہی ریڑیاں کھڑی کر دیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شام کے وقت رش بڑھنے کے باعث شدید ٹریفک جام ہوتا ہے۔ گاڑیاں وغیرہ آتی تو یہاں پر کافی رش ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو کوئی اقدام کرنا چاہیے، تو ان کو متبادل جگہ دے یا ان کے روزگار کا کوئی انتظام کرے، کیونکہ بالکل نہ ٹریفک جام ہوتا ہے، ایک گھنٹہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے یہاں پر۔ سروس روڈز پر ریڑیاں کھڑی ہونے سے ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہے، جبکہ سبزی فروٹ کی ریڑیاں اور سٹالز لگنے سے پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے باعث آتے ہیں، راستہ بند ہے، آپ دیکھو سارا روڈ بلاک ہے، سروس روڈ سارا بند ہے، سروس روڈ پہ تو جگہ ہے ہی نہیں نا ذرا بھی، دونوں سائڈوں پہ بند ہے۔ ریڑی اتنی ہیں
तो कोई गुजरने का रास्ता ही नहीं है। आदमी कहाँ से गुजरेगा, आधा आधा घंटा रोड ब्लॉक हो जाता है। कारोबारी अफराद भी मौजूदा सूरत हाल पर परेशान दिखाई दिए। ताहम दुकानदारों और शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी तजावुज़ात खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। खानेवाल इंतजामिया के नहली हुकूमत पंजाब की हफ्ता सफाई मुहिम फोटो सेशन तक महदूद रह गई है। रिहायशी आबादियों में जाबजा कूड़े के अंबार, ताफुनशुदा माहौल ने शहरियों का जीना धूबर कर दिया। सफाई अमले की हट धर्मी पर शहरी शिकवा कुना है। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर न हो सके, मुख्तलिफ इलाकों में जाबजा कूड़े के ढेर ताफुन फैलाने लगे। अहले इलाका का कहना है ताफुन ज़दा माहौल के बायस वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि मुतलका अफसरान सफाई मुहिम में फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। हफ्ता सफाई बैनर और इश्तिहारों में नजर आ रही है या फोटो सेशन में नजर आ रही है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। कहीं गली कोचों में, बाजारों में, चौकों में कहीं भी चला जाए गंदगी के ढेर हैं। यहाँ हमारी रिहायश है, करीब भी देख लें कि कितने गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे अपना 11-20 स्कूल है हमारा चौक जसवंत नगर में, उसके साथ देख ले गंदगी के कितने ढेर पड़े हुए। शहरियों का कहना था कि म्युनिसिपल कमेटी का अमला कई रोज बाद कूड़ा उठाने आता है, जबकि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बीमारियां फैलाती है, ये गंदगी, इसको लिहाजा इनको चाहिए कि इसको पर कंट्रोल करें, इसको सफा करें। जो महकमा है ना, उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि ये गंदगी को उठाएं। गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है बेसाबा, कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा, कहीं सफाई नहीं है, बैनर लगे हुए हैं, सारा कुछ है, सफाई नहीं होती जी। बस शहरों और दही इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर सफाई मुहिम का पोल खोल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह कूड़ा करकट के लगे ढेर ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। कोच शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया ख़ुर्नोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। दालों और चावल के रेट में 40 से 50 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। घी, ऑयल, अंडे, आटा, दालें और चावल महंगे होने से अवाम की चीखें निकलने लगी हैं। ओपन मार्केट में दाल चना 32 रुपए फी किलो महंगी होकर 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। गला मंडी में दाल मूंग 6,500 से 7,000 रुपए फी मन सेल हो रही है और ओपन मार्केट में दाल मूंग 142 से बढ़कर 175 रुपए फी किलो में पहुँच चुकी है। गला मंडी में चावल 8,500 से लेकर 8,800 रुपए फी मन हो चुका है, जबकि चावल की कीमत 40 रुपए फी किलो इजाफे से 220 रुपए फी किलो पर पहुंच चुकी है। सर, बढ़ती हुई महंगाई से हम बहुत तंग हैं। जो हालात चल रहे हैं इस वजह से हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि रेट को बहुत कम से कम किया जाए ताकि गरीब आवाम परेशानी से बच सके। मजदूर बंदे 500 रुपये दिहाड़ी है तो उस पर वो 500 दिहाड़ी में क्या खरीदेगा? शाम को आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, क्या चीज़ खरीदेगा? उसमें उसी हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही। महंगाई आए रोज बढ़ने से खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। चंद दिनों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही और शरीफ। फलों के सरकारी निर्खों और मार्केट रेट्स में खुला तजाद। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी है। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट की बजाय दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। मुल्तान से सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। फलों के लिए जारी सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट के रेट्स में बड़ा फर्क। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लोकाट का सरकारी रेट 130 रुपए है, मार्केट में ये 250 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं कि गला सड़ा फ्रूट निकालने से बचत नहीं होती, जिसके बायस फ्रूट महंगा बेचना पड़ता है। मंडी से जो सामान आता है उसकी क्वालिटी ऊपर कुछ होती है और अंदर कुछ होती है। यहाँ पे जो अच्छी मार्केट है वहाँ पे फ्रूट जो है वो अच्छे लेवल का इस्तेमाल करते हैं। वो लो क्वालिटी का फ्रूट लोग खरीदते नहीं है, परचेज ही नहीं करते, उसके हिसाब से फिर छांटी करनी पड़ती है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक आड़ू और खुबानी 260 रुपए फी किलो है, जबकि आम मार्केट और रेडियो पर खुबानी 200 और आड़ू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि रात को 3 बजे रेट तय होते हैं, सुबह फ्रूट मुख्तलिफ कीमत पर मिलते हैं। मार्केट कमेटी फॉर्मेलिटी पूरी करती है और अपना कमीशन बना लेती है। जो रेट आती है लिस्ट उसके मुताबिक कोई माल मिलता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से ही देते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है, टैक्स दे के उसके बाद ख़त्म हो जाता है।
मार्केट कमेटी और दुकानों के रेट्स में तजाद पर दुकानदार मार्केट कमेटी को कोसने लगे हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। तहरीक इंसाफ 20 मई को मुल्तान में पावर शो के लिए तैयार है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए जनूबी पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएंगे। पीटीआई शुबा खवातीन भी मुतहरिक हो गया। 18 मई को वीमेन कन्वेंशन का इनेकाद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसा कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनूबी पंजाब भर से कारकुनों को जलसा गाह लाने का टास्क सौंप दिया गया। जलसे को कामयाब बनाने के लिए खवातीन विंग भी मुतहरिक। 18 मई को वुमेन कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया, जिसकी सदारत साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल करेंगी, जबकि पीटीआई जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ओन अब्बास बप्पी और दीगर रहनुमा मेहमान खसूसी होंगे। जनूबी पंजाब के दीगर अजला में भी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें आज़ादी मार्च के हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। अमजद मलिक, मुल्तान। किला कोहना कासिम बाग मुल्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को सजाएगी मैदान। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का जनूबी पंजाब से मजीद 200 एहलकार तलब करने का फैसला। मजमूई तौर पर 500 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। इंतजामात को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। यासिर मजीद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ का कासिम बाग स्टेडियम में पावर शो। ट्रैफिक पुलिस ने जनूबी पंजाब से मजीद 200 एहलकार तलब करने का फैसला किया है। लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ से एहलकार तलब होंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पार्किंग के लिए वाटर वर्क्स रोड, दौलत गेट चौक, आम खास बाग और कचहरी रोड इस्तेमाल होगा। वीवीआईपी रूट पर ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि लिफ्टर्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक जलसा के लिए ट्रैफिक इंतजामात को आज हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पीटीआई के रजाकार भी ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी कासिम 17 रोज से लापता हैं। चौधरी कासिम की गुमशुदगी से वकला बरादरी में तशवीश बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान ने सरकारी वकील की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी कासिम 17 रोज से लापता। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तशवीश का इजहार। सरकारी वकील की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। बड़ी परेशानी की बात है कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में वकला कम्युनिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और हम इसके लिए मुख्तलिफ औक़ात में आवाज़ बुलंद करते रहें। आप मीडिया के तवज्जुह से भी ये बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते रहें कि वकला कम्युनिटी को ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर, बोग्ज़ की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जो निशाना बनाया जा रहा है, ये गलत है। चौधरी मोहम्मद अरशद साबिर म्यू का कहना था कि इतने दिनों से सरकारी वकील लापता है। वकला बरादरी में इस हवाले से तशवीश बढ़ रही है। लोग जो हैं डायरेक्टली अटैक करते हैं और उस अटैक करने के लिए जहां रियासत की जिम्मेदारी है कि प्रोफेशनल्स को अपने जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उन्हें ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उन्हें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं उन्हें हमें पूरी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सरकारी वकील चौधरी मोहम्मद कासिम 27 अप्रैल को शादाब कॉलोनी मुल्तान में अपने घर के बाहर से लापता हो गए थे। चौधरी मोहम्मद कासिम मुल्तान सेशन कोर्ट में बतौर सरकारी वकील खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। हाई कोर्ट बार मुल्तान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में तकरीब सजाई गई। सदर हाई कोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक ने खुसूसी शिरकत की। वकला ने साबिक चीफ जस्टिस की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि मुल्तान बार इनका घर है। उन्होंने यहीं से वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने मदऊ करने पर बार अहदेदारान और सीनियर वकला का शुक्रिया अदा किया। अपने घर में आता हूँ और मेरी ये बार एसोसिएशन है, यहाँ से मैंने सीखा है, यहीं से मैंने लर्न किया है, यहीं से मुझे इज्जत मिली है और मैं इसको अपने से अलहदा वजूद नहीं समझता। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का कहना था कि अच्छा वकील बनने के लिए रोजाना पढ़ना जरूरी है। नौजवान वकला केस की मुकम्मल तैयारी करके अदालतों में पेश हों। वकील उस वक्त बनता है जब बंदा पढ़ने बैठे तो 2.5-3 घंटे उसको इन सब चीज़ों का कोई एहसास ना रहे। वो अपनी फाइल में, अपनी किताब में, अपने कागजात में इतना खो जाए। तो एक तो मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि मेहनत का कोई नमल बदल नहीं। सदर हाईकोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक और जनरल सेक्रेटरी मलिक अरशद हुसैन भट्टी का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की खिदमात काबिल तहसीन है। जिला कचहरी और हाई कोर्ट के तोसी मंसूबे पर तेजी से काम कराया गया। मैं आपको अपनी जानिब से अपनी मुकम्मल एग्जीक्यूटिव बॉडी
की जानिब से और स्टेज पर बैठे हुए तमाम सीनियर्स और इस हाल में बैठे हुए तमाम मौजूद मेंबरान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तकरीब में नायब सदर औरंगजेब खान बलोच, लाइब्रेरी सेक्रेटरी फरजाना सुलेमान, फनान सेक्रेटरी खुरम शहजाद, सीनियर वकला रफीक रजवाना, हबीबुल्ला शाकिर और मलिक हैदर उस्मान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अजीम के साथ माह इमरान नवाज, मुल्तान। खानपुर के मौजा गुलाम नबी लाड में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली मेटल रोड का इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के एमपी मियां शफी मोहम्मद ने सड़क का इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। आमिर सुहेल की रिपोर्ट। खानपुर के इलाके मौजा गुलाम नबी लॉट में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर मेटल रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के एमपीए मियां शफीक मोहम्मद का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वसेब के लोगों को शनाख्त दी, उनको हक देते हुए अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स फराहम किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन इमरान खान बहुत जल्द आवाम की ताकत से दोबारा इक्तदार में आएगा। पीटीआई दी हुकूमत ने $2.5 अरब रुपए दी डेवलपमेंट ही हल्के च मेरे को दी है, जड़ी मैं तुहानू पेश की। अज तक असैंबली दी मिसाल असैंबली दे विच मिसाल नहीं मिलती कि स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर दे अलावा कहीं इजलास इतना लंबा चलाया हो। अहले इलाका ने हल्के में अरबों रुपए के फंड्स फराहम करने पर मियां शफीक मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया और आइंदा इलेक्शन में उनकी भरपूर हमायत का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह असा पिछले 3.5 साल दे विच एक बाइज्जत शहरी होने के नाते असा को जेड़े साडे हुकूक हैं उनके हवाले नाल मियां शफी मोहम्मद साहब की क्यादत दे विच तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल फैसिलिटेट किए और असा वादा करेंदे से कि असा इन्हें दी मुहब्बत का कर्ज इंशाअल्लाह इलेक्शन दे विच जेड़ा आमदा पे इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करे। इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका ने एमपीए मियां शफीक मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहावलपुर के शहरियों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए हीट वेव कैंप लगाया गया। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल ने हीट वेव कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने शहरियों में मिनरल वाटर की बोतलें तकसीम की और गर्मी से बचने बारे हिदायत भी दी हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर की जिले इंतजामिया शहरियों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए मुतहर्रिक। शहरियों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए हीट व्यू कैंप लगाया गया। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल शहरियों को आगाही देने के लिए हीट व्यू कैंप पहुंचे। उनका कहना था कि हीट व्यू कैंपस में शहरी ठंडा पानी पी भी सकते हैं, साथ ही सर और मुंह भी धो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरे बहावलपुर डिवीजन में हमने इस तरह के वाटर पॉइंट्स लगाए हैं। जिस तरह बहावलपुर सिटी में हमने इस तरह के 10 वाटर पॉइंट्स लगाए हैं। इसमें निमकोल भी अवेलेबल है। अभी इनको मैंने कहा है कि अगर कोई सर धोना चाहता है या हाथ धोना चाहता है मुंह पे, तो उसके लिए भी पानी का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि इन दिनों परिंदों के खाने पीने का भी ख्याल रखा जाए। इंसान खुद के साथ साथ जानवरों को भी गर्मी से बचाएं। इस वक्त न सिर्फ इंसानों को बल्कि जो चरिंद परिंद और हमारे जानवर हैं उनके लिए भी पानी का खातिर इंतजाम कीजिए। फरीद गेट पर कायम हीट व्यू कैंप में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर मियां अजहर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत गिलानी भी कमिश्नर के हमरा शहरियों को गर्मी की शिद्दत और उसकी संगीनी बारे आगाही देते रहे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का एहसन इक़दाम, चोलिस्तानियों की मदद के लिए आबे फरीद कैंप लगा दिया। सख्त गर्मी और खुश्क साली में चोलिस्तानियों और जानवरों के लिए पानी का बंदोबस्त किया गया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने गर्मी और खुश्क साली से मुतासर चोलिस्तान में इमदादी काम का बेड़ा उठा लिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने चोलिस्तान में इमदादी कैंप लगाया। कैंप में साथसा तुलबा और तालबात ने चोलिस्तानियों की मदद के लिए काम किया। यूनिवर्सिटी ने चोलिस्तान में बसने वाले अफराद और चोलिस्तानी जानवरों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने जिली इंतजामिया और चोलिस्तान पंजाब के ताउन की कोशिश से हमने ये कैंप लगाया। इस कैंप का मेन मकसद ये है कि जहाँ पर मेनली जानवरों के लिए भी हमने पानी का अरेंज किया हुआ है, ताकि वहाँ से जो जानवर जो मर रहे हैं उनके लिए हमने लोगों ने पानी का इंतजाम किया हुआ है और लोगों के पीने के लिए साफ पानी का हमने ये इंतजाम किया हुआ है। पानी पीने के पानी का इंतजाम भी किया है और इस तरीके से जानवरों के लिए भी पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम किया है। तो ये एक अच्छा कदम है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने उठाया है, ताकि बाकी लोग भी इससे जो है ना इससे मोटिवेशन लें। और ख़ास तौर पे जो चोलिस्तान के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जानवर भी बहुत सारे जो हैं पानी और खुराक की कमी की वजह से जो है वो मर रहे हैं। इमदादी काम में हिस्सा लेने वाले तुलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाए गए कैंप का मकसद अपने बहन भाइयों की मदद करना है।
दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और हमें हमारे जो बहन भाई हैं चोलिस्तान डेजर्ट के उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको पानी मुहैया किया जाए। इसलिए हमारी ये काविश है स्टूडेंट्स की कि हम आज अपना हिस्सा यहाँ पे मिलाने आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साफ़ सुथरा पानी हम अपने बहन भाइयों को और जानवरों को भी मुहैया कर सकें। डेजर्ट में यहाँ पे क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, पानी की बहुत किल्लत है, जानवर मर रहे हैं, लोगों को प्यास का पानी की किल्लत का सामना है, तो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम किया है। चोलिस्तान में खुशहाली के बायस पीने का पानी नायाब हो चुका है। यूनिवर्सिटी का आबे फरीद कैंप तपते सहरा में उम्मीद की एक किरण है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर साफ पंजाब मुहिम का आगाज। मुहिम के तहत पंजाब भर में गलियां साफ सुथरी होंगी, स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी। साफ पंजाब मुहिम के हवाले से बहावलपुर जिला काउंसिल हॉल में तकरीब सजाई गई। महमूद जहीर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबा भर में साफ पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया। बहावलपुर जिला कौंसिल हॉल में इस हवाले से एक तकरीब सजाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। हम सबको ये मालूम है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप सफाई रखेंगे, सेहत के मसाइल भी कम होंगे, बाकी मसाइल भी कम होंगे और हर तरह से फिर खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खूबसूरती बहुत पसंद है। कहा गया है कि अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का तकरीब से खिताब में कहना था कि आवाम के ताउन के बगैर घरों और शहरों की सफाई मुमकिन नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आवाम भी साफ पंजाब मुहिम में हुकूमत और इदारों का साथ दे। इब्तदाई एक बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी और यकीन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की भी ख्वाहिश थी कि हम पब्लिक को जिस तरह इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे, बदकिस्मती से वो आज तक उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो सकी। मैं बिल्कुल इस बात से, जो एमडी ने भी कहा, एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, कि जब तक आवाम ताउन ना करे काम पूरी तरीके से नहीं हो सकता। बलीगुर रहमान का मजीद कहना था कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे आवाम और इदारे हर सूरत सफाई मुमकिन बनाएं और हर जगह कूड़ा फेंकने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।